Hello students, today we are starting the development of fruit, and in last lecture we have studied about development of seed and different types of seeds like as albuminous seed, non-albuminous seed, or uh, we can say that seeds which are developed from ovule. And now today we are going to start development of fruit. So let us start. First of all, fruit is developed from mature ovary. So this type of fruit is known as true fruit. So today we are going to start development of fruit. Development of fruit. Like fruits are normally developed through ovary or from, you can say that, mature ovary. Mature ovary forms a well developed fruit in most of plants. For example, most of plants, mango, orange, banana, grapes, these all plants have true fruits because they are developed from ovary part. But in some plants, in some exceptions, we can say that only ovary don't take part, or ovary does not take part in the process of development of fruit. Especially we can say that apple, strawberry, casberry, in which thalamus or other part take part in process of fruit formation. So fruit is divided into two categories: true fruits or false fruit. So true fruits, suppose that orange in which seeds are developed, and then suppose that this is the inner part of orange. So orange is a true fruit, and this is suppose mango. So mango is also true fruit. Mango is a true fruit because in mango ovary takes part in the development of fruit, and ovary wall is converted into pericarp. Fruit wall is known as pericarp. Fruit wall is known as a pericarp, which is formed through fruit ovary wall. So we can say that this is, suppose that, carpel, and this is stigma, and then style, and then this ovary in which this is ovule, which convert into seed, and so this is ovule. In last lecture we have discussed that ovule developed into seed.
So what are the stimulus for related to development of fruit? फ्रूट डेवलपमेंट के लिए कौन से 3 स्टिम्यूल्स कब कब मिलते हैं? फर्स्ट स्टिम्यूल होता है जब पोलिनेशन स्टार्ट हो जाता है, पोलन ट्यूब पहुंचती है यहाँ पे, देन फ्रूट डेवलपमेंट इनिशिएट होता है ओवरी में. फर्स्ट इंडक्शन कब मिलता है? जब पोलन ट्यूब का मूवमेंट होता है, पोलिनेशन हो जाता है. सेकेंड स्टिम्यूल होता है जब डेवलपमेंट ऑफ सीड स्टार्ट होता है, ओव्यूल से क्या बनना शुरू होता है? सीड. एंड थर्ड स्टिम्यूल होता है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, जब प्रोवाइड होते हैं तो फ्रूट का डेवलपमेंट प्रॉपरली होता है. तो देयर आर 3 स्टिम्यूल्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इन अ प्लांट और इन अ फ्लावरिंग प्लांट. फर्स्ट स्टिम्यूल रिलेटेड टू पोलिनेशन, second stimule related to development of seed, then fruit is developed. And developing seed, we can say that developing seed with development of seed, development of fruit also takes place. And then third is the nutrients availability, it is third stimulus, then complete well developed fruit is formed. So this ovary part form fruit, ovary part forms fruit. Normally we can say that ovary wall is developed into pericarp. Pericarp have 3 layers: epicarp, mesocarp and endocarp. Epicarp outermost layer, mesocarp is middle layer and endocarp is innermost layer. So there are 3 types of layer or 3 types of wall, we can say that, which combinedly known as pericarp: epicarp, mesocarp and endocarp. Outermost layer epicarp, in most of plants it is a outer protective layer. In some plants we eat mesocarp and in some plants we can eat endocarp also. And in some fruits we can say that some fruits are fleshy, like as mango, like as apple, like as orange. And some plants, in some plants fruits are dry, like dry fruits, peanuts. So fruits may be fleshy, fruit may be dry. फ्रूट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और वो आपके 11th क्लास में इंक्लूडेड थे. एंड देन अब जो है हम पढ़ रहे हैं सिर्फ फ्रूट का डेवलपमेंट. तो फ्रूट डेवलपमेंट जैसे कि मैंने बताया, first of all ovary takes part in the process of development of fruit after maturation and during the development of seed. But basically in some plant two other difference also found. Then other parts of flowers convert into fruit. For example, thalamus part, which is known as thalamus part, false fruit. We can say that this is the basic difference. If ovary takes part in the process of formation of fruit and false fruits means other parts convert into fruit और other parts से fruit बनते हैं. For example, thalamus, like as thalamus. Thalamus converts into fruit in some plants, like as in apple, it is apple. You know, in apple, एप्पल पार्ट में जो ये फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है, इट इज थैलेमस, इट इज ए थैलेमस. सो थैलेमस कहाँ पे होता है? जैसे ये फ्रूट है, फ्लावर है, सपोज दैट ये फ्लावर है, फ्लावर में कैलिक्स के नीचे ये देखो इस तरह से हम डायग्राम में बनाते हैं. तो फ्रूट डेवलपमेंट के बाद और पार्ट्स तो गिर जाते हैं फ्रूट के डेवलपमेंट के बाद प्लांट में, लेकिन ये जो थैलेमस है ये अगर फ्रूट बनाने लग जाए या सपोज दैट अगर हम कहें कि अदर पार्ट से फ्रूट्स बनने लग जाए तो वो फॉल्स फ्रूट होते हैं, वो ट्रू फ्रूट नहीं है. ट्रू फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओवेरी पार्ट. यहाँ पे जो कार्पल है उसकी
ओवरी पार्ट से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट होता है देन इट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट, और थैलेमस से या अदर पार्ट से डेवलप होता है तो फॉल्स फ्रूट। तो अब आप सोच रहे होंगे थैलेमस से कैसे फ्रूट बन जाता है। देखो ये जो पार्ट है ये स्वॉलन होकर के फूल करके और देन इस ओवरी पार्ट को कवर कर देता है, और ओवरी इसके अंदर जो है वो चली जाती है और रिड्यूस हो जाती है, उसमें सीड रह जाते हैं डेवलपमेंट के टाइम। तो हम कह सकते हैं कि पूरी ओवरी जो है इसी तरह से जैसे ये थैलेमस था एप्पल का, इसने पूरे सीड्स को कवर कर लिया और ओवरी पतली थिन फिल्म के रूप में इसमें रह जाती है। तो ये सीड्स सेंटर में दिखाई देते हैं हम जब काटते हैं एप्पल को। एंड देन बहुत सारी प्लांट्स में जब हम डेवलपमेंट देखते हैं तो ओवरी ही वो पार्ट है जो कि डेवलप होता है फ्रूट में। बट जैसे स्ट्रॉबेरी की बात करें अपन तो स्ट्रॉबेरी में भी क्या है, स्ट्रॉबेरी में भी जैसे हम खाते हैं स्ट्रॉबेरी, इसमें थैलेमस ही है जो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। सो स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो ए fruit which is also false fruit, we can say that it is developed from the thalamus part of flower, and apple is also false fruit. So these are some examples like as mango, orange, banana, grapes, these are all true fruits because they are developed from ovary, and the ovarian wall which formed pericarp, we can say that it changes into fruit wall, and fruit wall is known as pericarp, and pericarp means the wall of fruit. It is divided into 3 layers: epicarp, mesocarp and endocarp. In some fruit we eat mesocarp, and in some fruits we eat endocarp. So like in apple we eat thalamus part, and then mesocarp, endocarp, एपिकार्प जो ओवेरियन वॉल है वो एकदम अंदर चली जाती हैं, और इन स्ट्रॉबेरी वी ऑल्सो ईट थैलेमस पार्ट, एंड इन अदर फ्रूट्स लाइक एज इन मैंगो वी ईट ओनली मीजोकार्प। तो किसी में मीजोकार्प फ्लैशी हो जाता है, सम फ्रूट्स आर फ्लैशी लाइक एज मैंगो, ऑरेंज, एंड सम फ्रूट्स आर ड्राई लाइक एज ग्राउंड नट, लाइक एज मस्टर्ड, मैनी फ्रूट्स और पीनट्स वगैरह। तो ये सब क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर। एंड देन फ्रूट्स में भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स भी होते हैं, वो मैं भी बताऊंगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एप्पल का फ्रूट है, इट इज़ इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी बुक। इट इज़ अ स्टॉक, थैलेमस, सीड्स एंड इट इज़ एकीन फ्रूट। इसके फ्रूट का टाइप वैसे अगर देखें अपन फॉल्स फ्रूट में एकीन फ्रूट बोलते हैं इसको, और ये थैलेमस से डेवलप होता है। मैंगो इज ट्रू फ्रूट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। फ्रूट may be differentiated into 2 parts, and one more type of fruit is known as parthenocarpic fruit. So what is the meaning of parthenocarpic fruit, and what are parthenogenesis? Dear students, the process of formation of embryo without fertilization is known as parthenogenesis, or the process of formation of embryo from unfertilized egg is known as also parthenogenesis। मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, किसी भी अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से या बिना फर्टिलाइजेशन के जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, इट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। वहीं से एक वर्ड आया पार्थेनोकार्पी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स which develop without fertilization known as parthenocarpy। parthenocarpic fruit which are developed from we can say that fruits which are developed without fertilization from ovary is known as parthenocarpic fruit। तो ऐसे फ्रूट्स भी देखे गए हैं। अगर हम इनको इनकी वैल्यू देखें तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एट as a commercial level, we can say that commercial level, economically level, they are more important than other fruits because they have not seeds, they are more important
and they have not seeds. So these are seedless fruits. These are seedless fruits. Seedless. So it is important term, parthenocarpy. Seedless fruit may be developed, or if it is induced by some growth hormone, plant growth hormone like as auxin, then it is called as induced parthenocarpy. Another term, induced parthenocarpy. Induced parthenocarpy, that means parthenocarpic fruit. Which fruit? Those fruit which are developed from ovary without fertilization, known as parthenocarpic fruit, and the process of development of fruit without fertilization is known as parthenocarpy. Parthenocarpy. And parthenocarpy, if parthenocarpy is induced by using some hormones like auxins, like some plant growth hormones, because auxin hormone induces parthenocarpy at large scale, and also cytokinin hormone also induces the parthenocarpy. Some fruits containing plants in which fruits are developed by parthenocarpy process, they have not seeds. These are seedless fruits and they are commercially more important than simple fruits. Commercially वो क्या होते हैं, इकोनॉमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि उनमें सीड्स ही नहीं है. तो सीड्स नहीं होते हैं वो फ्रूट्स कौन से होते हैं, पार्थेनोकार्पी. और इसी जो हम कह सकते हैं एडवांटेज की बेसिस पे इनको मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए पार्थेनोकार्पी इंड्यूस की जाती है. उनमें कुछ हॉर्मोन्स डाले जाते हैं जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिससे ये फ्रूट्स जो है वो जल्दी ओवरी से मैच्योर होके बन जाते हैं. जैसे ओवरी जो है उसमें पोलिनेशन हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, उससे पहले ही अगर हमने उसमें फ्रूट के ऊपर फ्रूट पे क्या डाल दिया, अगर फ्रूट के ऊपर सॉरी ओवरी के ऊपर अगर हमने प्लांट ग्रोथ हार्मोन या उस फ्लावर के ऊपर प्लांट ग्रोथ हार्मोन की स्प्रेइंग कर दी, देन उसकी जो ओवरी है वो मैच्योर हो जाएगी टाइम से पहले ही और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ये पार्ट. और इसमें जो ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा. सो ये क्या बन जाएंगे, सीडलेस बन जाएंगे, सीडलेस फ्रूट, और इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल orange, for example banana, if they are seedless, and grapes, seedless grapes may be developed by auxin, so they are economically more important, economically more important than other plants. Clear students? So economically इनकी importance जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो ये इसके फ्रूट्स के पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के पॉइंट्स हैं. पहले हमने पढ़ी लिया ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट. फ्रूट्स विच डेवलप्ड ओनली फ्रॉम द ओवेरी आर नोन एज ट्रू फ्रूट्स. ट्रू फ्रूट्स क्या हो गए, जो केवल ओवरी पार्ट से डेवलप होते हैं. एंड देन फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स लाइक एज थैलेमस विच कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल एप्पल, strawberry, cashberry. So these are some best example related to false fruit because they are not developed by mature ovary, or they are developed from other parts of plant except ovary. ovary को छोड़ के कोई भी पार्ट जो है वो अगर फ्रूट बनाने लग जाए तो ये कुछ और हट करके चीज़ हो गई, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. ऐसे खाने में ये फॉल्स फ्रूट नहीं होते हैं, एक्चुअल फ्रूट ही होते हैं, बट इनके अंदर जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है. ठीक है. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. तीनों के बारे में कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. देन वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच हैव नॉट डिस्कस्ड बाय अस, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ सीड्स. एडवांटेज ऑफ सीड्स इन एंजियोस्पर्म्स एंड व्हाट इज द वायबिलिटी ऑफ सीड्स फॉर एंजियोस्पर्म्स. What is the
advantage of seeds for plant and what is the meaning of viability of seeds. So advantage of seeds, first we have to discuss about seeds have better adaptive strategies and they helpful in dispersion of a plant or dispersion in different habitats in different areas. We can say that अगर plants एक ही जगह है रहता है, plants have not ability of movement, plants have not ability to move from one place to another place. So उसके जो seeds हैं वो dispersion में उसकी help करते हैं, फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया डिस्पर्स हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में ही वो रहे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ही जगह आप सोचो एक फ्रूट एक प्लांट बन रहा है और उसके अंदर से सीड निकले और वो वहीं गिर गए तो वहीं फ्रूट उसी के वहीं प्लांट्स नई जनरेशन बनती रहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो प्लांट एक लिमिटेड एरिया में ही रह जाएगा। तो उसका जो डिस्पर्जन है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन अपने पास में सीड्स हैं, अब हम अपने घरों में भी उसको लगाते हैं, गार्डन्स में भी लगाते हैं, क्रॉप फील्ड में भी लगाते हैं, देन उसको अगर हम ग्रेन्स हैं अनाज है तो उनको खेतों में लगाते हैं, बड़े लेवल पे फार्मर्स जो है फार्मिंग करते हैं तो उनका एरिया जो है चेंज हो जाता है, जो सीड्स पता नहीं कहाँ से लाए हुए थे उनको ख़रीदा गया, मार्केट वैल्यू उनकी थी इसलिए उनको मार्केट से लिया गया किसी के थ्रू, फिर कहीं और लगाया गया, तो सीड्स के ही तो कारण ये पॉसिबल हुआ है। तो दे हेल्प इन डिस्पर्जन ऑफ ए स्पीसीज or a plant from one area to another area. Clear? Another one advantage is they protects developing embryo or developed embryo, because we can say that the embryo is developed into the ovule. embryo कहाँ बनता है? ovule में, आपने पढ़ा अच्छे से। then embryo अगर अंदर है तो उसको प्रोटेक्शन तो चाहिए, जब तक कि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है सीड को, वो जर्मिनेट नहीं होता, तो वो अंदर अपने उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो सीड कोट टेस्टा एंड टैगमेन, टू सीड कोट आर प्रेजेंट, वी हैव डिस्कस इन लास्ट लेक्चर, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स फॉर्म टेस्टा एंड टैगमेन लेयर, so both layers are protected layer and especially testa layer is hard and thick layer and it provides protection to developing embryo। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इंटरनल अगर कंडीशन की बात करें फ्रूट सीड की, तो सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो का पूरा प्रोटेक्शन जब तक कि सीड जर्मिनेट नहीं हो जाता, सीड के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है एम्ब्रियो प्रोटेक्शन। देन अनदर वन इज जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है सीड में, क्योंकि एम्ब्रियो हैव जेनेटिक मटेरियल ऑफ बोथ पेरेंट्स, स्पेशली यू कैन से दैट इन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, fertilization process takes place in which male and female gametes are fused. So in plants also these seeds have embryo which is developed from zygote, and zygote have both type of genetic material, so it is more advanced than its parental generation, and embryo is present in seed. So seed have genetic material having we can say that embryo, and this embryo convert into plantlet after germination of seed. Plumule and radicals are developed in this embryo, so the embryo convert into plantlet and seedling and then convert into plants. So we can say that this is the next generation, sporophyte generation, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। then sporophyte generation and gametophyte generation, both type of generation are present in plants. The main generation is sporophyte generation, तो उसी में रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं, उसी में सारे फ्लावर्स लगते हैं। देन गैमेटोफाइट जनरेशन उसके अंदर फ्लावर के अंदर बनती है, समझ रहे हो ना, मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बनता है। तो गैमेटोफाइट जनरेशन इज डिपेंडेड ऑन स्पोरोफाइट जनरेशन, ये हमेशा याद रखना। स्पोरोफाइट जनरेशन इज अ इंडिपेंडेंट स्टेज, इट इज एन independent photosynthetic stage. It has ability to its production of its food from photosynthesis. We can say that the process of by which food is synthesized by the use of sunlight, chlorophyll, and these plants, especially angiosperms, have sporophyte generation which is completely independent,
and completely autotrophic, and then gametophyte generation is dependent on this generation. सो जो एबिलिटी है सीड्स की वो ये जनरेशन को कंटिन्यू करने की भी होती है. सीड्स कब बनते हैं? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो के बाहर सीड बनता है, एंड देन सीड का जर्मिनेशन होता है तो उससे जो जनरेशन बनती है वो स्पोरोफाइट होती है. सो ये जो एक लिंक है बीच का दोनों जनरेशन का, ये सीड ही पॉसिबल करता है. ओके, देन डोरमेंसी, जैसे कि मैंने कल भी बताया था एक पॉइंट, सीड डोरमेंसी. सीड प्रोटेक्शन के साथ साथ अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंस पीरियड में चले जाते हैं. डोरमेंसी इज अ सस्पेंडेड स्टेज ऑफ अ सीड इन विच ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिकम स्लो हो जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और सीड कुछ समय के लिए सस्टेन्ड पीरियड में चला जाता है. आप ये सरप्राइज होंगे कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें सीड की डोरमेंसी बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है. जैसे कि एक एंशंट एक डिस्कवरी थी जिसमें ल्यूपिनस आर्कटिकस का सीड मिला है. ल्यूपिनस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीड से रिलेटेड इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ. ल्यूपिनस आर्कटिकस, रिमेंबर दिस पॉइंट, ल्यूपिनस आर्कटिकस. ये आर्कटिक टुंड्रा एरिया जो है, आर्कटिक टुंड्रा एरिया, वहां से इसको डिस्कवर किया गया. टुंड्रा एरिया ऑफ आर्कटिक और आर्कटिक टुंड्रा एरिया. सो आर्कटिक टुंड्रा एरिया से एक ल्यूपिनस आर्कटिकस प्लांट का सीड मिला है जो 10,000 ईयर्स के बाद में भी डोरमेंसी पीरियड में है, और अब उसका जर्मिनेशन पॉसिबल है. दैट मीन्स उसका फॉसिल है ये एक तरह का 10,000 साल पहले, काफ़ी लंबा टाइम होता है, एंड देन उससे पहले का ये सीड है, और इसकी जो लाइफ पीरियड है, वायबिलिटी है जर्मिनेट होने की, वो कितनी हो गई? 10,000 ईयर्स. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जब भी बीच में आते हैं उन्हें आपको छोड़ना नहीं है, याद करना है. हाउ मेनी ईयर्स? 10,000 ईयर्स. विच प्लांट? Lupinus arcticus, which this plant were discovered from Arctic tundra area. Then a recent record of 2,000-year-old viable seed is of date palm. एक डेट पाम की स्पीसीज, इसमें 2000 years पुराना जो डेट पाम का प्लांट है उसका सीड मिला है, और उस सीड को ग्रो करवाया जा सकता है, वापस से जर्मिनेट हो सकता है. वो फोएनिक्स डेक्टाइलीफेरा. द नेम ऑफ दिस डेट पाम इज फोएनिक्स डेक्टाइलीफोरा. इसमें 2000 years old सीड अभी रिसेंट ईयर्स में मिला है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि 2000 साल बाद में भी इसकी डोरमेंसी पीरियड ख़त्म नहीं हुआ और ये जर्मिनेट होने की एबिलिटी रखता है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वायबिलिटी? द एबिलिटी ऑफ सीड रिमेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन. वायबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन. एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन, कितने टाइम तक वो जर्मिनेट हो सकता है, ये एबिलिटी उसमें जब तक रहती है, इट इज कॉल्ड एज इट्स वायबिलिटी, जीवन क्षमता. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट डोरमेंसी, यानी लंबे टाइम तक ये डोरमेंट पीरियड में रहता है, एंड देन इसकी वायबिलिटी उसके अंदर बनी रहती है. सीड जर्मिनेट हो सकता है लॉन्ग टाइम के बाद तक, तो ये बहुत बड़ी बात है जिसमें फ्रूट जो है और सीड जो है
उसका यही मेन रोल होता है कि नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू कैसे बनाया जाए. सो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज. सीड्स कैन disperse from one place to another place and they help in dispersion of species. You can see some seeds have some feathery structures and they move from one place to another place through air, through wind. देखा होगा आपने, पानी में भी मूव कर सकते हैं. कुछ सीड्स जो होते हैं, उन मूवेबिलिटी उनके अंदर डेवलप करने के लिए कुछ डिस्पर्जन एडेप्टेशंस डेवलप हो जाती हैं. जैसे हम देखते भी हैं एयर में कुछ सीड्स जो है उड़ते रहते हैं पतले, तो वो कुछ प्लांट्स का डिस्पर्जन जब हम नहीं करते हैं तो वो अपने आप नेचुरली भी डिस्पर्जन उनमें देखने को मिलता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड अनदर वन इज दे प्रोटेक्ट द यंग एम्ब्रियो and they have new genetic combinations, so they are helpful in variations or related, we can say that variations related to species. Clear students? And one more important point that एंशियंट टाइम में आर्कटिक टुंड्रा एरिया जो है उससे लुपिनस आर्कटिकस प्लांट का जो सीड मिला है उसकी जो 10,000 ईयर्स ओल्ड वायबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है. एंड देन डोरमेंसी पीरियड के बाद उसका जर्मिनेशन पॉसिबल है. इसी तरह से एक डेट पाम प्लांट का अभी रिसेंट ईयर्स में जो प्लांट का सीड्स मिले हैं वो है फोएनिक्स डेक्टाइलीफेरा. उसका 2000 ईयर्स तक क्या है उसमें ओल्ड वायबल सीड्स मिले हैं. तो वायबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड फॉर लॉन्ग टाइम. क्लियर? एंड देन इन वी कैन से दैट ऑर्किड फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है बहुत सारे सीड्स से बहुत सारे फ्रूट्स बनने की. कुछ प्लांट्स में कम सीड्स होते हैं, जैसे मैंगो के अंदर. ऑर्किड्स में थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होते हैं एंड मैंगो में 1 सीड होता है, तो उसमें एक फ्रूट से एक ही जनरेशन नेक्स्ट डेवलप हो सकती है उसके सीड के जर्मिनेशन के थ्रू. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ seed in importance. And then in next lecture we will discuss about some other points, apomixis and polyembryony. Thank you.